Hello students, good morning. Welcome back on the digital teaching platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Today in this lecture of English, we will do second part of second chapter, Snapshot Book, the address. Before proceeding, let's discuss something about first part. Let's try to recapitulate first part. In first part, we discussed that after ringing the bell of house number 46 in Marconi Street, a woman opened the door. On being introduced, the woman kept staring at her in silence. There was no sign of recognition on her face. The woman was wearing her mother's green knitted cardigan. The narrator could understand that she had made no mistake. She asked the woman whether she knew her mother. The woman couldn't deny this. The narrator wanted to talk to her for some time, but the woman cautiously closed the door. The narrator stopped there for some time and then left the place. The subsequent sections, the memory of the narrator, bygone days, came to light. Her mother had provided the address years ago during the war in Holland. She went home for a few days. She could find that various things were missing. At that time, her mother told her about Mrs. Darling. That lady, Anna, she happened to be an old acquaintance of the narrator's mother. Lately, she had renewed contact with her mother and had been coming there regularly. Every time she left their house, she took something home with her. She told that she wanted to save all their necessary possessions. The next day, the narrator saw Mrs. Darling going out of their house with a heavy suitcase. She had fleeting glimpse of Mrs. Darling's face. She asked her mother whether the woman lived far away. At that time, the narrator's mother told about the address, number 46 Marconi Street. After many days, the narrator was courageous to take record of the possessions that must still be at number 46 Marconi Street. With this intention, she went to the given address. Now in this session, we will discuss second visit of the narrator to Marconi Street number 46. Let's start line to line explanation of second part. I followed the girls along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, है ना, लास्ट लाइंस में, कि नरेटर जो है वो सेकंड टाइम मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 पे विज़िट करती है, लेकिन तब वो लेडी जो है, वो मिसेस डार्लिंग जो है, वो घर पे नहीं होती. उनकी बेटी वहाँ पर घर पे होती हैं. नरेटर जो है उनकी बेटी को मिलती हैं. मिसेस डार्लिंग की बेटी बोलती है कि मदर जो है वो किसी काम से बाहर हैं. तो नरेटर बोलती है कि ठीक है, मैं जब तक वो नहीं आ जाती, मिसेस डार्लिंग जब तक नहीं आ जाती तब तक मैं इनकी वेट करूँगी. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि मैं वो गर्ल जो थी, है ना, मिसेस डार्लिंग की शायद बेटी, मैं उसको फॉलो कर रही थी. एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का क्या होता है? द फेस्ट ऑफ लाइट्स, आ हिब्रू फेस्टिवल इन दिसंबर. तो ये कैंडल्स को होल्ड करने का थिंग है हनुक्का, है ना, जो कि हिब्रू लोगों का हिब्रू धर्म जो है उनका फेस्टिवल है जो दिसंबर में आता है. कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. जो कैंडल होल्डर जो था वो मिरर से आगे जो है वो हैंग किया हुआ था. वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया था. तो वो बता रही है कि ये कैंडल होल्डर जो था वो किसका था? वो भी मिसेस एस और नरेटर उनका था, है ना.
because it was much more cumbersome than a single candle stick, है ना, क्योंकि इसको यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, इसीलिए हमने कभी भी इसको जो है यहाँ यूज़ नहीं किया था। हम हमेशा सिंगल कैंडल होल्डर को ही जो है वो यूज़ करते थे। सो कम्बरसम क्या होता है ना, अ लार्ज एंड हैवी डिफ़िकल्ट टू कैरी, क्योंकि इसको कैरी करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए हम हमेशा जो है वो सिंगल कैंडल स्टिक जो है ना, कैंडल होल्डर जो है उसी को हम कैरी करते थे। वुडन यू सिट डाउन आस्क द गर्ल, क्या बैठोगे नहीं, उस गर्ल ने लड़की ने मेरे से पूछा। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, तब उसने जो है लिविंग रूम का गेट जो है वो ओपन किया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, है ना, और मैं उसके पीछे पीछे जो है अंदर चली गई लिविंग रूम के अंदर। आई स्टॉप हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मीन्स शॉक, जैसे ही मैं अंदर गई तो मैं एकदम से रुक गई और मैं बहुत शॉक हो गई। क्यों, वाई, लेट्स सी इट। आई वॉज इन अ रूम, मैं उस रूम के अंदर थी। आई न्यू एंड डिडंट नो, जिसको मैं जानती थी और जानती भी नहीं थी। तो ये क्या मीनिंग हुआ कि जानती भी थी उस रूम को, जानती भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो वो रूम के अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई थी उनको तो मैं जानती थी, है ना, लेकिन वो रूम क्योंकि हमारा नहीं था, वो चीज़ें तो हमारी थी, है ना, लेकिन वो रूम जो है वो हमारा नहीं था। इसीलिए उसने बोला है कि आई न्यू एंड आई डिडंट नो। अब मैं मिडल में थी उस रूम के अंदर, जिसको मैं जानती भी थी और जानती भी नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट, मिडेस्ट मीन मिडल ऑफ द थिंग्स आई डिडंट वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, है ना। ये वो सारी चीज़ें थी शायद जिनको मैं दोबारा देखना नहीं चाहती थी, है ना। इन चीज़ों ने मुझे जो है वो एक अजीब से स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में शायद धकेल दिया। ऑप्रेस्ड क्या होता है, ट्रीटेड इन अ क्रूअल एंड अनफेयर वे, है ना, सताना, परेशान करना। ये चीज़ें अब मुझे बस एक तरह से वो उसकी पुरानी यादें जो है वो फ्रेश हो रही थी, ताज़ा हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें उसको दुख कष्ट पहुंचा रही थी, किसको, नरेटर को। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द muggy smell that hung there, I don't know, but I scarcely dare to look around me। हमने पहले भी बताया, अगली मतलब, है ना, अच्छे तरीके से अरेंज चीज़ें जो थी वो टेस्टलेस थी। डैम्प स्मेल जो यहाँ से आ रही थी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। चीज़ें जो थी वो अच्छे से अरेंज की नहीं की हुई थी, फर्नीचर जो था वो उतना अच्छा वहाँ पर नहीं था। वहाँ से मगी स्मेल, डैम्प स्मेल जो है वो हमेशा आ रही थी, है ना। जो चीज़ें वहाँ पर लटकाई हुई थी दीवारों के ऊपर, जिनको मैं जानती तो थी, बट आई स्केरली डेयर टू लुक अराउंड, लेकिन मैं सब चारों तरफ मैं देख रही थी तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, वो लड़की ने चेयर जो है वो मूव की। आई सैट डाउन, मैंने बैठ गई उस चेयर के ऊपर। एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ, और मैं जो है वो वुडन टेबल क्लॉथ की तरफ देखने लगी, ये क्लॉथ की तरफ। आई रब्ड इट, मैंने, है ना, अपना हाथ जो है इसके ऊपर रब किया। माई फिंगर ग्रू वार्म, मेरी फिंगर जो थी वो थोड़ी गर्म होगी, वार्म होगी, फ्रॉम रबिंग, जो मैं रबिंग कर रही थी। तो ये वुडन क्लॉथ भी जो किसका था, वो भी मिसेस एस का ही था। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, जो पैटर्न बना हुआ था, है ना, वुडन टेबल के, ये क्लॉथ के ऊपर, मैं उसको फॉलो कर रही थी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, यहाँ पर किनारे पर जो है एक जगह जो है वो कुछ जले हुए का निशान था। बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जो कभी भी रिपेयर नहीं किया गया था, मतलब आज भी जो वो बर्न मार्क जो है वो अभी भी वहाँ पर था, और मैंने उसको ढूंढ लिया। माई मदर विल बी बैक सून सेट द लेडी, सेट द गर्ल, तो
गर्ल ने, वो लड़की ने, है ना, मिसेस डार्लिंग की लड़की ने बताया मुझे कि मेरी मदर जो है वो जल्दी ही वापस आने वाली हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप? थैंक यू, तो क्या आप भी चाय पियोगे? तो मैंने बोला थैंक यू। आई लुक्ड अप, है ना, अब मैं, द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल, मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वो लड़की जो है वो चाय लेकर आ चुकी थी वहाँ पर, है ना। शी हैड अ ब्रॉड बैग जस्ट लाइक हर मदर, है ना, मतलब उसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर था वो अपनी मदर के जैसा था, वो गर्ल का, वो लड़की का। शी poured टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, ऑल इट हैड was a gold border on the lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. तो ये रहा, है ना, जो पूरा कप्स, और उन्होंने हमें बताया कि वाइट पॉट था, ये भी किसका था? ये भी मिसेज एस और नरेटर का ही था। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ था, है ना, ये वाइट कलर का था, गोल्ड की ये लेड लगी हुई थी ऊपर की तरफ, है ना, कॉर्नर पे हम देख रहे हैं। मिस ये सारी चीज़ें हमारी ही थी, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से याद थी। उसके बाद जो है वो लड़की ने जो है बॉक्स ओपन किया और उसमें से कुछ स्पून, चम्मच जो है वो बाहर निकाले। दैट्स नाइस बॉक्स, तो मैंने बोला कि बॉक्स जो है वो बहुत अच्छा है। हियर आई हेयर्ड माई ओन वॉइस, मैं अपनी ही आवाज़ को सुन पा रही थी। इट वॉज़ अ स्ट्रेंज वॉइस, ये बहुत अजीब आवाज़ थी जो मेरे अंदर से आ रही थी। एज थो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसा कि यहाँ से आने वाली हर साउंड जो है, जहाँ पर हम लोग बैठे थे उस रूम से आने वाली हर साउंड जो है, हर आवाज़ जो है वो उस दिन कुछ अलग ही थी। ओह यू नो अबाउट दैम, तो वो लड़की ने मुझे पूछा कि क्या आप इन ये स्पून्स के बारे में या वो बॉक्स के बारे में जानती हैं। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो थोड़ा उसने टर्न किया और मुझे मेरी चाय जो है वो दो दी। शी लाफ, वो लड़की जो है वो हंसने लगी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ, है ना। तो यहाँ पर कौन बात कर रहा है? वो लड़की बात कर रही है, अपनी मिसेस डार्लिंग की लड़की जो है वो बात कर रही है। वो बता रही है कि मेरी मदर ने बोला कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंटिक्स हैं। एंटिक मतलब ना, जो बहुत पुरानी हो और बहुत प्रीशियस हो। और उसने बताया कि हमारे पास ऐसी चीज़ें और भी बहुत सारी हैं। उसने पॉइंट आउट, है ना, रूम में एक जगह की तरफ पॉइंट आउट किया और मुझे बोला सी फॉर योर सेल्फ, उस तरफ देखो, और भी बहुत सारी एंटिक चीज़ें जो हैं वहाँ पर रखी हुई हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हैंड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो तो हमारी ही थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ड, मैं जानती थी कि वो लड़की जो है वो कौन सी चीज़ों की बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, है ना, मेरा तो ध्यान जो है था वो टी टेबल के ऊपर ही था। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट, तो यहाँ पर हमें बताया कि फैंसीड क्या होता है? इमेजिन, है ना। pewter अ ग्रे मेटल मेड बाय मिक्सिंग टिन एंड लेड। चलिए, है ना, वो ये एप्पल्स की बात कर रही है ना, जिनको देखकर वो अक्सर आकर्षित होती थी, है ना। और ये प्लेट जो है pewter प्लेट, जो कि ग्रे मेटल से बनी हुई थी, है ना, जिसमें टिन और लिड जो है, कांसा और तांबा जो है मिक्स करके प्लेट जो है वो बनाई हुई थी। तो ये बताती हैं कि वो ये एप्पल्स की तरफ हमेशा ही, जब वो छोटी बच्ची थी, नरेटर जो थी, वो बहुत आकर्षित होती थी। वो बार बार इसको हासिल करना चाहती थी कि ये मुझे दो, ये मुझे दो। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, वो बताए। अब ये वो यहाँ पर जो है ना, उसने दूसरा भी सामान रखा हुआ है, वो स्पून्स और दूसरी जो एंटिक्स चीज़ें जो उनके घर पे
जो नरेटर यूज़ करते थे, है ना, वो सारी चीज़ें उसने यहाँ पर रखी हुई हैं मिसिस डार्लिंग ने। तो लड़की हमें बताती है कि हम ये चीज़ें हमेशा यूज़ करते हैं। शी सेड वंस वी इवन एट of the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. तो वो बताती हैं कि हम जो प्लेट्स वहाँ पर हैंगिंग की हुई हैं वो अक्सर उनमें खाना खाया करती थी, है ना, लेकिन ऐसा कुछ इसमें कुछ अजीब नहीं था, अलग नहीं था कुछ। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने तो वो टेबल क्लॉथ पे जो बर्न मार्क था वो ढूंढ लिया था। द गर्ल लुक क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की जिस तरीके से ना क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, कि आपने ये बर्न मार्क कैसे ढूंढ लिया, उस तरीके से वो मेरी तरफ देख रही थी। येस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, है ना। तो अब मैंने बताया मिसेस डार्लिंग की बेटी को कि आपके घर में जो भी चीज़ें होती हैं आप अक्सर उनको टच करती हैं, जो भी प्रीशियस चीज़ें होती हैं हमारे घर में रखी हुई, लेकिन आप उसकी तरफ इतना कभी ध्यान से नहीं देखते क्योंकि हम उसके यूज्ड टू होते हैं, हमें उनमें कुछ स्पेशल नहीं लगता, है ना। जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं रहती तभी हमें उन चीज़ों की जो है असल में कदर जो है वो पता चलती है। जब वो हमारे पास होती हैं तब तो हम उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते, वो प्रीशियस थिंग्स की तरफ। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, मैंने जो आपको डिस्कस किया वही है यहाँ पर बात, कि आप उन चीज़ों को तभी नोटिस करते हो जब वो वहाँ पर नहीं रहती है, वो वहाँ से चली जाती हैं। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट, फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो वो आप उनको रिपेयर करवाने के लिए कहीं पर देते हो या वो चीज़ें आपसे जो है वो कोई और ले जाता है ना। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्या था, एग्ज़ाम्पल नरेटर खुद थी। अगेन आई हेयर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, दोबारा से मुझे मेरी अननेचुरल वॉइस जो थी, मेरे अंदर की आवाज़ जो है वो सुनाई दी। एंड आई वेंट ऑन, और मैं जाने के लिए तैयार हो गई, खड़ी हुई मैं। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद आया कि एक बार मेरी मदर ने मुझे बोला था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, क्या मैं उनकी हेल्प करूँगी, वो जो प्लेट्स थे, वो स्पून जो थे वो जो सिल्वर के बने हुए थे, उनको हमें क्या करना था, पॉलिश करना था। तो मेरी मदर ने एक बार मुझे ऐसा करने, पॉलिश करने के लिए बोला था कि चल तू मेरी हेल्प कर, हम लोग जो है ये सारी चीज़ों को पॉलिश करते हैं। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पुराने समय की बात है। आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, शायद उस दिन जो है मैं घर पे बोर हो रही थी या मैं घर पे ही थी क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी नेवर आस्क्ड मी बिफोर, मेरी मदर ने ऐसा मुझे पहले कभी भी करने को नहीं बोला था कि चलो वो बर्तन जो हैं, है ना, जो स्पून्स हैं उनको पॉलिश करते हैं। आई आस्क हर विच सिल्वर शी मीन and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives, of course, and that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. मैंने मेरी मदर से पूछा कि आप कौन से सिल्वर की बात कर रहे हो, तो मदर ने बताया और मैं बहुत हैरान थी। मदर किस चीज़ की बात कर रही थी, वो स्पून्स, वो फॉक्स, नाइफ, चाकू, है ना। मतलब ये बहुत स्ट्रेंज थिंग थी, मैं नहीं जानती थी कि हम जो कटलरी जो है यूज़ करते हैं खाने के लिए, है ना, जिसमें हम खाना खाते हैं, बर्तनों में, जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें जो थी, इट वॉज मेड ऑफ सिल्वर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिल्वर की बनी हुई थी। मुझे तो ऐसा पता ही नहीं था क्योंकि मैंने नोटिस ही नहीं कभी किया था। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की जो है वो दोबारा हंसने लगी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर आई लुक इंटेंशनली एट हर केयरफुली, है ना, इंटेंशनली केयरफुली, व्हाट वी एट विद, शी आस्क्ड
वेल डू यू नो, ये सारी चीज़ें जो थी वो किसकी बनी हुई थी, केयरफुल अपनी सिल्वर की बनी हुई चीज़ें थी। लड़की दोबारा हंसने लगी, है ना। मैंने बोला कि मैं तेरे से बेट लगा कर बोल सकती हूँ कि तूने कभी भी इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो किसकी बनी हुई हैं, वो सिल्वर की बनी हुई हैं, आप तो जानते ही नहीं हो। और उसने बोला शीज व्हाट वी एट विथ, क्या कौन सी वो चीज़ें जिसके साथ हम खाना खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या आप उनको जानते हो, ये जिन चीज़ों के साथ हम खाना खाते हैं। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ा हेजिटेट हुई। शी वॉकड टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ चले गए। एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉअर, आई विल लो इट्स इन हेयर। तो वो लड़कियों ने मुझसे बात किया, क्या तुम उन सब चीज़ों की बात कर रही हो जिसमें हम हर रोज़ खाना खाते हैं, वो तो यहाँ पर रखी हुई हैं, किसमें, ड्रॉअर में, है ना। आई विल लो, मैं उनकी तरफ देख रही थी। इट्स इन हेयर, वो तो यहाँ पर रखी हुई हैं, इन ड्रॉअर के अंदर। आई जम्प्ड अप, मैं वहाँ से खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं तो टाइम ही भूल गई थी, क्योंकि मैं इतना खो गई थी अपनी सब चीज़ों को देखने में, है ना, जो हमने सालों पहले जो है मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ पर रखी थी, या मिसेस डॉर्लिंग जो है हमारे घर से ले गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मैं तो टाइम ही भूल गई थी, मुझे तो अपनी ट्रेन जो है वापस आने के लिए दूसरी ट्रेन भी पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रायर, वो लड़की ने जो है वो ड्रायर खोलने के लिए उसको हाथ डाला ताकि वो ड्रायर खोल पाए। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी मदर की वेट नहीं करोगे, वो लड़की ने मुझे बोला। नो आई मस्ट गो, तो मैंने बोला नहीं, मुझे जाना चाहिए और मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं डोर की तरफ आई। द गर्ल पुल्ड द ड्रायर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे, है ना। वो लड़की ने ड्रायर जो है ओपन किया, लेकिन मैं तो तब तक बाहर की तरफ आ चुकी थी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं पैसेज में से नीचे की तरफ आ रही थी, आई हेयर, मैंने सुना द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, किस चीज़ की आवाज़, खड़क, है ना, जिंगलिंग साउंड ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। तो ये स्पून्स की आवाज़ और फॉक्स की आवाज़ जो है वो मुझे दोबारा सुनाई दी जब मैं पैसेज में से नीचे की तरफ आ रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने रोड के कॉर्नर से दोबारा से उस नेम प्लेट की तरफ देखा जहाँ पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46। तो ये एड्रेस है, मैंने दोबारा से, है ना, जब वो सेकेंड विज़िट जो था नरेटर की वो ख़त्म हो चुकी थी, वो घर से बाहर आ चुकी थी, नीचे रोड पे आ चुकी थी, तो दोबारा से उन्होंने जो है वो एड्रेस की तरफ देखा। एंड इट्स मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 मिसिस डॉर्लिंग was written on the name plate. The address was correct. एड्रेस जो था वो सही था. But now I didn't want to remember it anymore. लेकिन अब मैं इसको याद रखना नहीं चाहती थी. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed means separated from them. You see them again in strange surroundings, है ना. मैं वापस वहाँ पर दोबारा जाना नहीं चाहती थी, ना ही मैं दोबारा उन ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहती थी, उन थिंग्स को देखना चाहती थी, है ना, उन सारी चीज़ों को जो मुझे मेरी पुरानी मेमोरी के साथ लिंक करती थी, है ना, जो हमारे पुराने टाइम को मेरे साथ दोबारा से लिंक करती थी. क्यों? क्योंकि अब हम वहाँ से सेपरेट हो चुके थे, उस शहर से सेपरेट हो चुके थे, अब उन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं था. यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, अब जब बार बार उन चीज़ों को देखोगे तो अब आप खुद को अनकम्फर्टेबल ही फील करोगे, आप खुद दुखी होगे, इसका कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट आप पे पड़ने वाला नहीं है. एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम, और अब मैं उन सब चीज़ों का क्या करूँगी. इन अ स्मॉल रेंटल रूम, अब तो हम जो है एक छोटे से रेंट के रूम में रहते हैं. वेयर द श्रेड्स
where the shreds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. अब दीवारों पे जो है ना, वो एक तरह के ब्लैक पेपर्स लगे हुए हैं। छोटे सा रूम है, विंडोज़ छोटी छोटी हैं वहाँ पर, है ना। और हमारे पास हैंडफुल कटलेरी, थोड़ी सी कटलेरी है, क्योंकि वही थोड़ी सी कटलेरी ही जो है वो छोटे छोटे ड्रॉयर्स में, है ना, फिट हो सकती है। इस तरीके के ब्लैक आउट पेपर्स जो है वो दीवारों पे लगे हुए हैं। अब वो इतनी सारी कटलेरी मेरी किसी काम की भी नहीं है। अब मैं उस सारी कटलेरी जो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे अब रखी हुई है उसको वापस लाकर भी क्या करूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को तसल्ली दी। आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। अब मैंने सोचा कि इस एड्रेस को भूल जाना ही अच्छा रहेगा। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। अब मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं वो सारी चीज़ें जो हैं, है ना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो भूल जाऊँ। रिसॉल्व मीन्स डिसाइड। तो मैंने डिसाइड किया अब मुझे उस एड्रेस पे दोबारा कभी वापस नहीं जाना है और उसको भूल जाना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जितनी बार भी उन सब चीज़ों को याद करूँगी उससे मुझे क्या होगा, उससे मुझे तकलीफ़ ही होगी। और सबसे पहले मुझे क्या भूलना है, दिस एड्रेस, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। So students, thanks for watching the video. Thank you very much. This is the second part of second lecture of Snapshot book, है ना। It is a story of a war. What effect a war create on common human beings. तो क्या फ़र्क पड़ा है ना। अब हमारी जो नरेटर हैं उनको अपना सामान भी वापस नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कहाँ पर रखेंगी। तो उन्होंने जो है वो एड्रेस को भूल जाने का ही फैसला किया। एक्चुअली दिस स्टोरी tells us that the war creates many difficult and unpleasant situations for human beings. Sometimes it becomes difficult to know that what to do. The human predicament that follows war are amply illustrated through the experience of the narrator. The war had caused many physical difficulties as well as emotional suffering to her. She had lost her dear mother. She went to Marconi Street number 46 to see her mother's valuable possessions. How greedy and callous human beings can become is exemplified by the behavior of Mrs. Darling. She had stored all the valuable belongings of the narrator's mother, but she refused to recognize the narrator. She did not want even let her in. The presence of her mother's possessions in strange atmosphere pained the narrator. Now this valuable had lost all their importance for her as they had been separated from her mother. She could get no solace और comfort from them. तो उनकी मदर जो है वो भी इस दुनिया से चली गई थी। तो मदर की जो चीज़ें हैं उनका होना या ना होना, है ना, उसका मतलब भी नरेटर के लिए नहीं रहता है। वो सारी चीज़ें, मदर की जो चीज़ें हैं उनको देखकर वो अपने आप को दुखी ही फील कर सकते थे। So students, I hope you understood this chapter. If you have any doubt, you can clear it in live session. Thank you very much. Thank you.